Okay, I have to share the prayers ताकि आप सब लोग मेरे साथ चैंट कर पाए. So these are standard prayers. Standard prayers. Yeah, just a second. This is all. Yeah. So I'm sharing my screen. Please let me know if it is up. ठीक है? आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? सूर्यांश, दीपांशी and all of you. ओके, विजिबल है, फाइन. अच्छा, जो मेरा इंटरनेट है वो ठीक है, मतलब आप लोग को मेरा आवाज कुछ इंटरप्शन के साथ तो नहीं आ रहा है ना? इट इज फ्लॉलेस. ओके, फाइन फाइन. या तो अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा वीक है तो आप प्लीज मुझे बोल दीजिएगा. आई विल ट्राई टू शिफ्ट द इंटरनेट. एज सच आई एम नॉट इन माय होम टाउन currently in Meerut. I came to Kanpur first of all, and then currently I'm in this Sultanpur. So it's near to Ayodhya. So we have one engineering college here. I came for students to address them. So I'm right now in Sultanpur, like that. Yeah, thank you, Saksha. Start करते हैं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. So friends, I'm going to share a PPT with all of you. So I'm sharing my screen. Please let me know if it is visible. Fine. Yeah, तो देखिए जो आज का टॉपिक है, it's visible, right? Yes, no, maybe. Yes, okay, fine. Yeah, friends. So the topic for today is choosing a career path. Like अल्टीमेटली हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम कहाँ पे उन ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं या फिर उन ऑप्शंस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं आज. सो स्टार्ट करते हैं. या फ्रेंड्स, सो देखिए आज के टाइम पे अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, बीट फील्ड्स ऑफ अकाउंट्स, बीट फील्ड ऑफ मेडिकल, बीट इंजीनियरिंग और बीट सिविल सर्विसेज और बीट आर्मी or like any option which you have in your mind or any option which is available with us currently. So all these options has got a prerequisite of a competitive examination. All of you might be knowing कि ऐसा होता ही है. अब अगर हमें कहीं पर भी जाना है, अगर हमें किसी कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, अगर हमें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते ही हैं. Like that. तो इसका मतलब first of all we have to understand how to prepare for any competitive exams. Now it can be anything. It can be NDA, it can be CDS, it can be IIT-JEE, it can be JEE Mains, it can be NEET, it can be CDS, or it can be medical, CA for accounts, or it can be any exam. जो भी हमारे माइंड में हो सकता है, उस सब के लिए हमारे पास में कुछ ना कुछ competitive exam होता ही है. Now the first and the foremost thing which is very much required for every student to accomplish his goal is patience and determination. These two qualities are so important that even if we are not so intelligent, like होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं और कुछ होते हैं जो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. तो मान लेते हैं कि हम भले ही उतने इंटेलिजेंट नहीं भी हैं, but still if we have got the quality of patience and determination, then 100% assured that we are going to get success. Why? Because patience and determination is a golden quality, friends. Very, very special quality and very difficult to get. So don't worry, I'll share the secret also.
with all of you how to develop this patience, how to develop this determination. तो लेकिन मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, मैं आखिरी में बताऊंगा इस चीज को कि आप लोग आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर आप किस टाइप से पेशेंस और डिटर्मिनेशन को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये दो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ठीक है। तो एक तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट यू शुड हैव पेशेंस in your mind and you should have determination in your will, like that. Now next point is you should have correct and timely guidance. Very crucial, friends. See, if you want to go to any college or you want to pursue any path, let's say in your future, guidance is very crucial for it, and guidance from somebody who has already experienced it. Like if you want to take guidance about engineering, so please ask an engineer, don't ask a doctor about engineering, like that. Why? Because a doctor has not experienced the challenges engineer faces and all those things. Similarly, if you want to become a doctor, then please don't ask an engineer that how should I become a good doctor and all. Why? Because the challenges, the problems, the solutions, an engineer might not be knowing, like that. So the next very important point is it should be correct and it should be timely guidance also. Why timely? क्योंकि अगर हमारा टाइम निकल गया तो फिर उस गाइडेंस का कुछ फायदा नहीं है। कि अभी जैसे मान लेते हैं कि इफ यू वांट टू अपीयर फॉर एनडीए एग्जाम, अगर आपको एनडीए में जाना है तो एनडीए के लिए एज होता है अराउंड 24 years is the age for NDA, or I think it is the age for CDS. I think for NDA it is 18 or 19 years, like that, no? Okay, how much it is, Suryansh? What is the age for NDA? Sir, it's 20. 20, okay, ठीक है। हमारे टाइम पे 19 था, मे भी इंक्रीज कर दिया होगा, लाइक दैट। तो हाँ, तो देखिए इस तरीके से रहता है। तो अभी मान लेते हैं कि आपको एनडीए के लिए गाइडेंस चाहिए, तो अगर उसका टाइम निकल गया, अगर आपका एज ही निकल गया, तो उस गाइडेंस का कुछ फायदा नहीं रहेगा। इसलिए दैट गाइडेंस हैज टू बी टाइमली ऑल्सो। इसलिए फ्रेंड्स, हम सब लोगों ने आपके लिए ये जो सेमिनार है इसको अरेंज किया है, ताकि अभी आप सब लोगों का एज इतना नहीं है, लाइक ऑल ऑफ यू आर इन 10th क्लास और 11th क्लास व्हाटएवर, तो अभी आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप जहां पर भी जाना चाहते हैं, अगर आपको उसके लिए अभी से आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाएगा, then you will be able to walk the path which you want to walk very comfortably and with great confidence also, like that. So that's the second point. Third point is complete understanding about syllabus and the pattern of examination. Very crucial. Irrespective of any kind of examination, this particular tip is very crucial. Why? Because unless you know the complete syllabus, अभी मान लेते हैं कि आपको मालूम है कि let's say if you want to go for engineering, तो इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए आप जानते हैं कि बस एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, और एंट्रेंस में जो हमने 11th और 12th क्लास में साइंस में स्टडी किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, वो आता है। नहीं, वो तो आता ही है, लेकिन जो उसका एग्जैक्ट सिलेबस है उसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए एक्चुअली। इसलिए आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करने जा रहे हैं, उसका आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्पेशली उसका जो सिलेबस है उसका, और दूसरा उसका एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, एग्जामिनेशन होता कैसे एक्चुअली उसका, सो उसके बारे में भी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो इसको बोलते हैं दैट यू शुड नो अबाउट द सिलेबस आल्सो, एट द सेम टाइम एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है। लाइक मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न हर साल चेंज होता है। if anybody of you want to go for IIT or like NIT, then if you want to go for some engineering institute, then JEE Mains and JEE Advanced, I don't say about mains, but advanced pattern changes every year. So then you should be conscious कि इस साल का पैटर्न क्या आने वाला है। एक्चुअली में तो उसके बारे में कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन हर साल एक जो अलग अलग IIT होते हैं, जैसे IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, तो वही IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, तो ये जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, ये हर साल उसको जो पेपर होता है उसको सेट करते हैं, लाइक दैट। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। सिमिलरली अबाउट नीट, इफ यू वांट टू गो फॉर डॉक्टर फ्यूचर, लाइक दैट, तो देन उसके लिए हमारा जो नीट है उसका एग्जाम होता है। अभी मैं आऊंगा उन सब पे, अभी मैं आपको मैंने उसका हर एक का ऐड किया हुआ है स्लाइड, कि आपका जो भी ऑप्शन है, जो भी आप चाहते हैं उससे रिलेटेड, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट, दैट यू शुड हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिलेबस एंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, वेरी क्रूशियल एक्चुअली, ठीक है। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, calm and composed mind. Why? Because if you want to do effective preparation of that examination, that competitive examination, then your mind should be completely focused, it should be calm, and it should be composed.
then only you will be able to effectively do the preparation. अदरवाइज आपका हो ही नहीं पाएगा अच्छे से, जो भी रहेगा ना, मतलब आपका माइंड हमेशा उसी में एजिटेशन में रहेगा कि यार मालूम नहीं है मेरा इसमें, मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा उसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो अगर हम सिर्फ जो रिजल्ट है उसके बारे में ही सोचते रहेंगे तो हमारा एंडेवर कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा माइंड इट हैज टू बी काम एंड कंपोज्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में यही मिस्टेक होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन समहाउ उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। जो मेन एग्जाम होता है उसमें उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। उसका रीजन यही होता है एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, our mind is so much agitated and we are not able to control our mind. That is how even the preparation which we might have done does not help us anyway, like that. So इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए तो ये चीज रामबाण है एक्चुअली। रामबाण बोलते हैं ना कि मतलब ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, लाइक दैट, उस तरीके से। ठीक है, तो यू शुड हैव काम एंड कंपोज माइंड। स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम वेरी वेरी क्रूशियल। एनी एग्जामिनेशन यू वांट टू अपीयर, you should have a planning and a strategy, that how I want to study, how many months I have with me. Let's say I just have 15 days for my exam, so then you should have a strategy. तो देखिए strategy का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर चीज लिखना है कि मैं आज के दिन ऐसा करूंगा और फिर उससे अगले दिन ऐसा करूंगा। strategy का मतलब ये भी होता है, लेकिन सिर्फ ये नहीं होता एक्चुअली। क्यों? strategy का मतलब होता है that we should have some planning in our mind. हमारे माइंड में थोड़ा सा उसके लिए प्लानिंग होना चाहिए कि मैं इन 15 डेज में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं कंप्लीट करूंगा। मान लेते हैं कि आप अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं और इसमें से ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर्स ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर मैं 15 डेज की बात करूं, अभी मान लेते हैं कि आपके पास मंथ्स हैं, यू हैव 5 months 6 months, तो फिर आपका जो स्ट्रेटजी होगा इट कैन बी अ बिट एलेबोरेट कि मैं इस मंथ में ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, इसके जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, इनको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। और जो आगे आने वाले मंथ्स हैं और जो आखिरी मंथ है, उसमें मैं कुछ स्टडी नहीं करूंगा, आई विल सिंपली डू रिविजन इन द लास्ट मंथ, आई विल सिंपली डू रिविजन, लाइक दैट। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फ्रेंड, लग रहा है हमारा जूम मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग फिर से इसी लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं फिर से इसी पे ज्वाइन करके उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो ये था कि आप जिस भी एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा प्लानिंग और बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट इज बी केयरफुल ऑफ नेगेटिव मार्किंग, वेरी वेरी क्रूशियल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इवन दो दे आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, they do a one common mistake, and that is to attempt complete paper. भले ही हमें आता भी नहीं है, लेकिन हम भी फिर जो आपने अगर आपको if you have some experience of OMR sheet, एक हमारा OMR sheet होता है, उसमें आपके हर एक क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं और जो भी ऑप्शंस आपको सही लगता है दैट यू हैव टू एनसर्कल, लाइक दैट। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट वो जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उनके पास भले टाइम नहीं है उसको अटेम्प्ट करने के लिए, दे पुट सी या फिर ए जो भी ऑप्शन होता है सबका लगा देते हैं, और उससे जो उनके मार्क्स आने वाले होते हैं वो भी कट जाते हैं एक्चुअली। क्योंकि आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट को एलिमिनेट करने के लिए ही आजकल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं यूपीएससी और जेई और व्हाटएवर, दे हैव केप्ट नेगेटिव मार्किंग विद ग्रेट डेलिबरेशन, कि जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होंगे वो सारे ऑप्शन लगा के आएंगे और उनके मार्क्स आएंगे बहुत कम। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स तो नेगेटिव में भी चले जाते हैं, ऐसा भी होता है एक्चुअली ऐसा भी हो जाता है, लाइक दैट। तो इसलिए वी शुड बी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट अबाउट नेगेटिव मार्किंग। जेई में इफ यू वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग, जेई में नेगेटिव मार्किंग बहुत होता है एक्चुअली। हर साल जो जेई का पैटर्न है वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। स्पेसिफिकली उसमें 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग होता है, दैट इज -0.33 का नेगेटिव मार्किंग होता है। एनडीए में भी सेम होता है, लाइक दैट। फिर कुछ और एग्जाम्स होते हैं, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, उनमें होता है 0.25 का, 1 क्वेश्चन आउट ऑफ एवरी 4 क्वेश्चन, लाइक दैट। सो उसका नेगेटिव मार्किंग होता है -0.25 का। लेकिन जेई में खास करके काफी हाई नेगेटिव मार्किंग होता है, -0.33 का, लाइक दैट। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, ये हो गया हमारा दैट बी केयरफुल ऑफ नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट इज गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, very very crucial. That is where your practice will going to work. So the entire practice which we do of any examination is specifically for good problem solving skills.
if you have developed good problem solving skills, any competitive examination you can cover. And the practice, whatever we do, is intended for this one purpose, that we should have good problem solving skill. Next is correct filling of answers. ये भी बहुत important होता है. कुछ students क्या एक मेन मिस्टेक करते हैं, आंसर उनको आता है लेकिन वो गलती से OMR शीट में आंसर होता है C, और उनको पता नहीं कुछ तो लगता है शायद ए ऑप्शन आंसर है, और वो ए ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं, और एकदम से वो फिर देखते हैं अरे यार इसका आंसर तो सी था, लेकिन अभी आप OMR शीट पे उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि OMR शीट जनरली दे फिल विद बॉल पॉइंट पेन, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने चेंज किया तो आपका पूरा OMR शीट ही हो जाएगा डिस्कार्ड, लाइक दैट, बिकॉज इट इज चेक्ड अंडर सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, लाइक दैट. तो इसलिए ये कुछ बहुत मेन पॉइंट्स हैं. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपने कहीं पे लिख लिया है तो बहुत अच्छा रहेगा. तो इन सारे पॉइंट्स का आपको खासकर ध्यान रखना है. और जो इसमें मैंने आपको 5th पॉइंट दिखाया है, स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम, ये वाला पॉइंट आप सबके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम आने वाला है उसका प्लानिंग एक आपके माइंड में थोड़ा बहुत होना चाहिए कि मैं इस महीने में इतना करूंगा, या फिर एटलीस्ट मैं जब तक मेरा एग्जाम आएगा तो मैं अपना जो 50% सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लूंगा, या फिर 60% 70% जो भी है उस हिसाब से. ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है. तो इसका आपको ध्यान रखना है, खासकर अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए. Yeah, so now comes, let's prepare that. First of all, we have to do the nice preparation for the examination, and for this we have included a verse from Bhagavad Gita. This is a very beautiful verse. I'm sure many of you already might be knowing it also. It says, Matra sparshastu kaunteya sitoshana sukha dukkada agama paino nityas tam sitikshashva bharata. Can anyone, if you please read the translation? आप read करेंगे सूर्यांश translation? Okay, Anshika will. Okay, Anshika. Yeah, please go ahead, Anshika. Good morning, sir. Yes, sir. So the translation is, O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and the disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, oscillation of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Very, very, very crucial verse. I would say all of you should remember this verse. अगर आपको मतलब अगर आप इस वर्स को याद कर लेंगे ना, तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल वर्स है, किसी भी स्टूडेंट के लिए. एक्चुअली ये वाला वर्स, इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो उसको कहीं पे लिख लीजिए. और ये वर्स आई वुड रियली रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, प्लीज रिमेंबर इट. अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप इस वर्स को याद कीजिए, क्योंकि ये वर्स हर स्टूडेंट के लिए इतना क्रूशियल है. एनी टाइम अ स्टूडेंट फेसेस डिमोरलाइजेशन, इन द सेंस कि ही इज नॉट एट ऑल मोटिवेटेड, ही इज नॉट फीलिंग कि यार मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं शायद, या फिर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, या फिर मेरा जो प्लेसमेंट नहीं रहेगा. एंड देन एवरी डे इन एंड डे आउट ही इज डूइंग प्लेसमेंट प्रिपरेशन, watching different videos and all like that. So uske liye he has to understand that Lord Krishna told to Arjuna the same thing. He said matra sparshastu kaunteya, means hey Arjun, matra sparshastu kaunteya sitoshna sukha dukkha agama apayino anityas tam titikshashva bharata. तो ये जो इसमें वर्ड आया ना तितिक्षश्वा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है टू टॉलरेट. Now, what is the meaning of to tolerate? It has a very deep meaning actually. To tolerate means any difficulty I am facing in my life, any kind of challenge, any kind of problem I am encountering in my life, I have to learn to tolerate it. कहने का मतलब उसको सहते हुए हमें आगे बढ़ना है. Like मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ. मान लेते हैं कि आप जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग किया इसलिए मैं थोड़े इंजीनियरिंग के एग्जांपल्स थोड़े ले रहा हूँ ज्यादा, लाइक दैट. तो नाउ लेट्स से आपको जो जेई का एग्जाम है उसके लिए यू हैव टू डू द दैट एंटायर प्रिपरेशन फॉर जेई एग्जाम. नाउ मान लेते हैं कि जेई के एग्जाम में आपने बहुत मेहनत किया, एक साल भर आपने, मान लेते हैं साल ड्रॉप किया अपना, आफ्टर 12th आपने ड्रॉप किया, और आपने एक साल बहुत अच्छे से मेहनत किया, और फिर आपका जो मेन एग्जाम था वो वाला दिन आ गया, और आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं,
और आपने देखा कि आपने मैथ्स का तैयारी बहुत अच्छे से किया था, मैथ्स में तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सोल्व कर ही देंगे, आपका जो मैथ्स का जो वो था प्रिपरेशन वो एकदम हाई क्लास था। लेकिन मान लेते हैं एक ऐसा पर्टिकुलर जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो आ जाता है जो कि आप ट्राई कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसका आंसर नहीं आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि आपके पास टाइम है केवल 3 घंटे। आप जानते हैं जनरली कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है वो 2, 2.5 या 3 घंटे के होते हैं, उससे ऊपर का कोई नहीं होता है। मैक्सिमम जो होता है वो होता है 3 घंटे का, जो कि जेई का एग्जाम होता है, लाइक दैट। और भी होते हैं 3 घंटे के। आप जानते हैं आपके पास 3 घंटे हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन आप अगर उस वो कोई जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको अगर आप लेके बैठ जाते हैं कि यार ये सोल्व क्यों नहीं हो रहा है, इसको मुझे सोल्व करना है, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन तो मैंने सोल्व किए हैं। तो अगर आपने उस चीज को वहां पे टॉलरेट नहीं किया, अगर आपने इस चीज को सह के किया ठीक है छोड़ो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे जो और सारे क्वेश्चन है उन पे भी आना है, इसको बोलते हैं हमारा मेंटल एटीट्यूड। तो अगर आपका मेंटल एटीट्यूड टॉलरेट, इफ यू आर एबल टू टॉलरेट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर आप देखेंगे इसका आखिरी लाइन, एंड वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। So if we can tolerate all the challenges in our life without being disturbed, then you will going to become successful in your life 100%. If not at this point of time, surely in future. But those people who don't know to tolerate without being disturbed, they always end up in mess of their examinations. ऐसा ही होता है एक्चुअली, और ये एक्चुअली हम सब लोग सोच रहे हैं कि सर हमारे साथ नहीं होता है, मतलब हम सब लोग तो ऑलरेडी हम बहुत अच्छे मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हैं। एक्चुअली में हर स्टूडेंट के साथ में होता है। क्यों? स्पेशली अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से किया है ना, बहुत अच्छे से हार्ड वर्क किया है, देन ही विल बी मोस्ट डिस्टर्ब्ड जब उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए हमें इस चीज को सीखना है, लाइक दैट। और इसको हम सीखते कैसे, मैं भी उस पर आऊंगा, हमारा जूम मीटिंग खत्म होने वाला है तो आप फिर से इसी पे ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको शेयर करूंगा कि असलियत में हम अपने आप को हर किसी सिचुएशन में डिस्टर्ब होने से किस प्रकार रोक सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, मे बी हम अगले स्लाइड पे देख लेते हैं।